For many, the streets are a harsh reality where every day is a fight for survival. But to the dogs roaming the same streets, it's a world filled with endless freedom and uncertainty. Every day is a test of endurance when food is scarce and shelter is hard to come by. The only constants are hunger, disease, and the threat of violence from other dogs, humans, and the relentless wheels of passing vehicles. The city of Lucknow is home to an estimated number of 75,000 street dogs. These dogs are either stray and feral dogs that are born on the streets or the ones that have been abandoned by their owners for having outlived their interests or becoming too much of a burden to upkeep. The increasing number of dogs on these streets becomes a growing concern for the authorities due to the higher risk of dog bite incidents, putting the health and safety of the citizens at risk. According to the data cited in the Indian Parliament, a staggering 16 million cases of dog bites were reported between 2019 and 2022 across India, an average of over 10,000 bite cases daily. Under the guise of facts and numbers, there are often those who use this information to incite cruelty and intolerance towards these strays. Animal rights activists have been raising awareness against the mass hysteria surrounding these dogs caused by misinformation being spread with the aim to harm the public perception of such animals. This mass hysteria has resulted in acts of horrific violence and aggression against these dogs, often leading to their deaths. So if the issue is too serious to be ignored, but culling an entire population of street dogs isn't a viable option either, then what is the answer to Lucknow's stray problem? हम लोग को जितना भी जहाँ भी कोई घायल कुत्ता या कोई बीमार कुत्ता दिखता है, हम लोग खुद ही कोशिश करते हैं उनकी हेल्प करने की। और हम लोगों ने अब तक 2 टीबीटी कैंसर से पीड़ित कुत्तों को ठीक करवाया है, पूरा कीमोथेरेपी का सेशन बेयर किया है। अब यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं भी कोई भी घायल कुत्ता या कोई भी जानवर मिलता है तो डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में प्रोफेसर गीतांजलि मिश्रा की लैब में आके ज़रूर वो लोग बोलते हैं कि कुछ हेल्प कर दीजिए। हम लोग वी मेक श्योर कि हम लोग पूरी तरीके से उनकी हेल्प कर सकें। When a case appears to be beyond the efforts of an average person, the local NGOs and rescues step in to provide help. I've been running this foundation since 2015 and I've been doing rescue work for a very long time, way before that as well. And basically this whole idea came into being once we started the business. The main motive to start the business was to be able to fund our rescue work, and that's how Paws United Foundation and Paws United Pet Store came into being. पिछले 2 साल से we have been working together. So Maitri and Paws United, they are working together in unison. All our cases are done together. The shelter is run together. So yeah, we are pretty much a team, and it's one organization. Sadly, we are just 2 on papers right now. Currently हमारे पास हमारी केयर में permanently we have 150 dogs and 9 cats under our care. सबसे जो कॉमन वायरल इन्फेक्शंस होते हैं डॉग के, विच इज़ नेचुरल, वो डिस्टेम्पर और पार्वोवायरस होते हैं। इनका सीज़न आता है मॉनसून के टाइम पे, विंटर के एंड में। एंड डिस्टेम्पर इज़ अ डेडली डिजीज़। पार्वो से तो फिर भी अब चांसेस हैं बचने के। डिस्टेम्पर इज़ अ वेरी डेडली डिजीज़, इसीलिए वी ऑलवेज टेल पीपल कि आसपास अगर आप अपने डॉग को फीड करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है एक वैक्सीन लगवाना। ये सब डिजीज़ेज़ हैं। बट स्ट्रीट डॉग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्वाइवल ऑन द स्ट्रीट्स, एक्सीडेंट्स। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, हाथ टूटे हुए, पैर टूटे हुए पपीज़, पैरालाइज्ड डॉग, सर फटा हुआ है, एंड वेरी गोरी in very gory conditions. Beyond an iron will and the desire to make a change, the work of animal welfare and rescue needs funds and infrastructure to function systematically. Unfortunately, the basic capital requirement to run these organizations often goes unmet. एक शेल्टर को चलाने में जो सबसे बड़े 2 मेजर चैलेंजेस आते हैं, the first one being finances, the second one being infrastructure.
हमारी फंडिंग का जो मेजर सोर्स है वो हमारा खुद का पर्सनल काम है। हम खुद वर्क करते हैं, उससे जो फंडिंग आती है उससे हम शेल्टर अफ्लोट रखने की कोशिश करते हैं, बट ऑब्वियसली दैट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। सो इन केस इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक केस दैट हैज़ कम टू अस जिसमें बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, देयर इज़ लाइक सम मेजर ऑपरेशन दैट इज़ नीडेड, तो हम उसके लिए सेपरेटली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फंडरेजर चलाते हैं। Donations are very important. No shelter is completely funded either by the government or by any organization that is separately funding. तो ये जो लोगों के दिमाग में एक थोड़ा सा रहता है कि शेल्टर है तो बहुत पैसे आ रहे होंगे डोनेशंस में, नॉट एट ऑल, इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। स्टोर वो एस्टैब्लिश्ड इन 2015 और जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, और पूरा पर्पस ही था स्टोर को एस्टैब्लिश करने का ताकि हम अपने फाउंडेशन वर्क को सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हमारे पास कोई एज सच ग्रांट्स नहीं है। सैडली गवर्नमेंट भी कोई ऐसी ग्रांट्स नहीं निकालती है, जो निकालती भी है वो बहुत ही छोटे वैल्यू की होती है, उतना सफाइस नहीं करता है द अमाउंट ऑफ रेस्क्यू वर्क दैट इज़ नीडेड। स्टोर के साथ साथ हम फाउंडेशन में भी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स लॉन्चिंग आवर मर्केंडाइज। तो हमने जैसे कॉफ़ी मग अपने डिज़ाइंस कराए हैं, हमने टी शर्ट्स, वन ऑफ द वन दैट आई एम वेयरिंग ऑल्सो इज़ आर टी शर्ट, एंड हम इसको भी सेल करते हैं सो दैट जो खरीद रहा है ये उनके लिए भी बहुत स्पेशल हो और हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसका जितना भी हमें प्रॉफिट आता है विच कम्प्लीटली गोज इनटू रेस्क्यूइंग एंड मैनेजिंग दीज किड्स। From the many hundred cases that are reported every month, a good amount are a result of the lack of humanity in the most sophisticated species on planet Earth. हट धुत करना तो हर गली में ही होता है, लोग भगाते हैं, मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उससे तो डॉग्स बच जाते हैं। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स जो वायलेंस अगेंस्ट एनिमल्स है, इसके भी केसेस बहुत आते हैं। यहाँ पे एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, कुत्ता आराम से बैठा है, उसके ऊपर खौलता पानी डाल देना। 2 बच्चे अंदर ही है हमारे जो शेल्टर पे रहते हैं परमानेंटली, जिनके सर पे पानी डाल दिया था खौलता हुआ, एक पे एसिड फेंका हुआ है। ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके के लोग हैं। सिमिलरली वी हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वायलेंट पीपल। बहुत ही बुरे केसेस रहे हैं हमारे साथ, एंड स्पेशली आई थिंक एज वुमेन हु गो आउट टू फीड एनिमल्स लेट एट नाइट। तो ये सिर्फ एक एनिमल क्रूअल्टी का मुद्दा नहीं रह जाता है, ये यहाँ तक बात आ जाती है कि वुमेन सेफ्टी पे। अगर मैं अपने भाई के साथ फीडिंग कराने गई हूँ तो शायद मुझे लोग कम टोकेंगे, पर अगर इट्स अ सिंगल वुमेन आउट देयर फीडिंग लेट एट नाइट तो लोग पता नहीं क्यों बहुत ही दे कम विद अ लॉट ऑफ करेज एंड दे विल बी लाइक नहीं यहाँ मत खिलाइए, यहाँ बच्चे रहते हैं। कई बार केसेस इतने बढ़ गए हैं कि वायलेंट हो गए हैं लोग, एंड हमें पुलिस का भी हेल्प लेना पड़ा है। एंड सैडली जैसा स्टार्टिंग में भी बोला था मैंने कि सिस्टम में थोड़ा फ्लॉ है, तो पुलिस स्टेशंस में भी जाके हमें कई बार स्ट्रगल करना पड़ा है। एज एन अडल्ट आई थिंक वी कैन गो आउट एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास राइट है, हम सबको वेलफेयर के लिए काम करना है। From violence and cruelty to relocation and abandonment, humans are often unkind towards the creatures we exist with. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमंस की है कि अगर किसी स्ट्रीट डॉग ने बच्चे दिए हैं उनके घर के पास या नाली में, उनके घर के आगे की नाली में, तो ये पता नहीं कैसे बहुत क्रूएल तरीके से लोग बच्चों को माँ से अलग कर देते हैं। 1-1, 2-2 दिन के बच्चे ले जाके डंपस्टर में फेंक आएंगे। माँ बेचारी यहाँ तड़प तड़प के ढूंढ रही है, बच्चे बिना दूध पिए मरे जा रहे हैं। अबैंडन्ड केसेस बहुत सारे आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बुढ़े हो गए तो उनकी फैमिलीज़ ने उन्हें अबैंडन कर दिया। वो शेल्टर के पिलर्स पे बांध के चले जाते हैं, सड़कों पे छोड़ आते हैं, जंगल में छोड़ आते हैं। इलीगल ब्रीडिंग बहुत ही बड़ा मेनेस है इंडिया में। सैडली रेगुलेशंस ऑन पेपर बहुत ज़्यादा हैं, पर उसमें से फॉलो कुछ भी नहीं होता है। वन ऑफ द वेरी फेमस केसेस वाज ऑफ अग्नि। अग्नि एक लैब्राडोर डॉग था जिसके साथ हमने 7 और ब्रीडर्स डॉग को रेस्क्यू किया था। बट अग्नि बिकेम फेमस क्योंकि बहुत ज़्यादा पुलिस कचहरी, न्यूज़पेपर तक का केस हो गया उसका। एंड द सैड पार्ट इज़ कि ब्रीडर्स इन बच्चों को सिर्फ मनी मिंटिंग मशीन की तरह देखते हैं। जितनी भी फीमेल डॉग्स हैं इनको फोर्सफुली प्रेग्नेट किया जाता है। हम शॉप्स में जाके एक क्यूट पापी देख के ले आते हैं, हमें लगता है उसके लिए 15,000 20,000 दे रहे हैं। वी नेवर क्वेश्चन कि पेरेंट्स कहाँ हैं। एंड ऑन पेपर्स इन सबके लिए रेगुलेशंस हैं। एक डॉग को आप साल में 1 बार से ज़्यादा इम्प्रेग्नेट नहीं कर सकते, आपके पास KCI रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। कोई भी ब्रीडर्स ये कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। दे डोंट इवन हैव इनफ स्पेसेस। हमने ऐसे ऐसे केसेस में रेस्क्यू किया है कि जो आपकी पानी टंकी होती है उसके नीचे डिंजी सा रूम है, उसमें स्टैंड लगा रखा है, उस स्टैंड में बांध के फोर्सफुली डॉग को प्रेग्नेट किया जा रहा है। वी ऑलवेज सी हर स्ट्रीट पे कुत्ता है, हर स्ट्रीट पे पपी है।
फिर भी हम जाएंगे और हम खरीदना प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि जो अपने घर के सामने हम शायद उसे 2 रोटी दे के खाना दे के उसी को अपने घर में अगर अडॉप्ट करके ले आए। तो सबसे बेसिक स्टेप तो ये होना चाहिए कि हम जो घर के आसपास है उनको अडॉप्ट करें। खैर, अगर आप बहुत ही ब्रीड स्पेसिफिक भी है तो भी आपको शायद शेल्टर्स को अप्रोच करना चाहिए। बहुत सारे शेल्टर्स में काफ़ी सारे ब्रीडर्स डिस्कार्ड जैसे हमारे पास ही आते रहते हैं, वैसे ही और भी शेल्टर्स में हैं, तो आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वेज, अगर आपको लगता है कि फ़िज़िकली अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ऑफ कोर्स एक फैमिली मेम्बर की तरह आपको रखना है और आप अभी वो जिम्मेदारी लेने के लिए शायद अभी आप रेडी नहीं हैं, तो आप वर्चुअल अडॉप्शन भी कर सकते हैं हमारे शेल्टर से भी। जैसे ये जो बैठे हैं फ्रेम में, आई डोंट नो ये आ रहे हैं या नहीं, बट मस्का चस्का वर्चुअली अडॉप्टेड है दोनों बच्चे। वर्चुअल अडॉप्शन कुछ भी नहीं है, आपको महीने का इनका खर्चा देना है विच इज़ 4,000 to 4,500 रुपीज़। उसको पे करके आपको इनकी अपडेट्स भी मिलती हैं। वी ऑल्सो ट्राई टू गिव यू ऑल दी अपडेट्स मंथली एटलीस्ट कि बच्चा कैसा कर रहा है, एंड यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड यू ऑल्सो गेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉज। तो आई थिंक ये बहुत ही होलसम चीज़ है अगर आप वर्चुअली अडॉप्ट करें। Humane Society International has been working alongside the Lucknow Municipal Corporation since 2019 to sterilize and vaccinate the street dogs of the city. In 2023, HSI completed their 50,000th neutered surgery in Lucknow, bringing them closer to their goal of sterilizing 80% of Lucknow's stray dog population by the end of 2023. HSI 2019 अक्टूबर से ऑपरेशनल है लखनऊ में, एंड दे हैव डन इनक्रेडिबल वर्क व्हेन इट कम्स टू स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि जो भी ये स्ट्रीट डॉग्स हैं और इनकी क्रूअल्टी का और इनके रेस्क्यू का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनकी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना इज़ कंट्रोलिंग द क्रूअल्टी डायरेक्टली। It's not just that they're working on ground with regards to hitting the root cause of the problem, but they're also working on the fundamentals of it, कि वो एजुकेशन सिस्टम में, कॉलेजेस में वो चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा नीडेड है, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर द रिपल स्टार्ट्स। Every Tuesday, Jeev Ashray holds a unique bhandara for the stray animals living on the roads and alleyways of Lucknow. A healthy meal made possible through the efforts of the staff and volunteers is sometimes just what stands between the survival and death from starvation for these animals. As the sun rises over Lucknow, it brings with it a new day, a new chance. For the strays of this city, life may be a constant battle, but not all hope is lost. Amidst the chaos and indifference, there are those who refuse to turn a blind eye. Armed with little more than their love for animals and an unwavering resolve, these people become the difference between life and death as they navigate the same streets, seeking out those in need, offering food, care, and most importantly, hope. In the face of overwhelming odds, these dogs continue to love, to trust, and to hope. And as long as there are people willing to fight for them, there will always be hope. The streets of Lucknow will always be home to countless stray dogs, but they need not be places of despair. The journey may be long, but every step forward brings us closer to a future where no dog is left behind.